Hello to all my dear students of class 5th. This is Priyanka Arora welcoming you all once again to Maths online class. So students, we were doing chapter number 7 metric measures and I have given you 3 exercises of chapter number 7, that is 7A, B and C. And I hope all those 3 exercises must be clear to you. And today in this particular video, I will be starting exercise 7D. This is the last exercise of this chapter. So today I will cover question number 1 to question number 5 of exercise 7D. You will learn about addition, subtraction, multiplication, division and also the word problems related to metric measures topic. Okay students, so without further ado, let's start exercise 7D. So students, question number first of exercise 7D is add the following metric measures. Some metric measures, some metric units are given and we have to add those units to get the answer. See A part, it is 3 meter 2 decimeter 6 centimeter and 4 meter 6 decimeter 4 centimeter. So we will be adding these two metric measures. How you have to add it? See, at the top you will make the column and at the top of the column you have to mention the 3 units which are given in the question, that is meter, decimeter and centimeter. These 3 units you will mention at the top. Under meter you will mention 3, this side 3 and this side it is 4. So you will mention 3 and 4 in meter column. Then under decimeter column you have to mention number 2 and number 6. So these two will come under decimeter column, and then under centimeter column will come number 6 and number 4. So like this you have to arrange firstly these two numbers in column. Then simply add it. You all know how to do addition. So 6 plus 4, start from the last digit, that is from centimeter. So 6 plus 4 is equals to 10. 0 will come down and 1 will be carry over. 6 plus 2, 8 plus 1, 9 and 4 plus 3 is equals to 7. After adding you have to put the unit. So with 7 you have to mention meter, with 9 you have to mention the second unit, that is decimeter, and with 0 you have to mention the third unit, that is centimeter. So one way you can write your answer like this, or in another way you can write your answer as you can remove this 0, as with centimeter there is number 0, so we can remove this 0 and centimeter and only the answer can be 7 meter 9 decimeter. So you can write your answer like this. Okay, same way you have to do the remaining parts of question number first. See here, I am telling you how to arrange it in column. Here the units are kilogram, hectogram, decagram and gram. So these 4 units you will write at the top. So I have written these 4 units at the top, and under these 4 units we will be arranging the given numbers. Like in kilogram is given 7 and 4. So here I have mentioned 7 and 4. Then in hectogram is given 4 and 7. So I have arranged here 4 and 7. Then in decagram is given number 3 and number 9. So here I have arranged 3 and 9, and then finally in gram is given 5 and number 6. So here I have arranged 5 and 6. Then simply add it. 6 plus 5 is 11. 1 down, 1 carry over in decagram. 9 plus 3 is 12 plus 1, 13. 1 carry over, 3 down. 7 plus 4 is 11 plus 1, 12. 1 carry over, 2 down. 7 plus 4 is 11 plus 1, 12. Then after adding you have to mention the unit. So with 12 will come kg, with 2 will come hg, hectogram, with 3 will come decagram and with 1 will come gram. Okay, then in the same way you have to do part C. But in part C what is given students, that you have to add it and then you have to express your answer in kiloliter. That means whatever answer you are getting, that answer you have to convert in kiloliter. So first of all, simply you have to arrange it in column and do addition. So for arranging it in column, you will write at the top the units which are given in the question, which is kiloliter, hectoliter, decaliter and liter. So you can see that all 4 units I have mentioned at the top. After arranging the units at the top, I have arranged the numbers in the particular column. So in kiloliter, I have mentioned number 7 and number 9. Then in hectoliter, I have mentioned number 5 and number 7. Decaliter, I have mentioned number 6 and number 7. And in liter, I have mentioned number 6 and number 6. Then simply add it.
After adding, you will get the result as 17 kiloliter, 3 hectoliter, 4 decaliter and 2 liter. Now, as it is given in the question that we have to convert this particular number into kiloliter, हमें इसको kiloliter के अंदर convert करना है. kiloliter में convert करने के लिए आप क्या करेंगे students कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. आपको पता है kiloliter और यहाँ पर जो हाईएस्ट यूनिट गिवन है वो किलोलीटर है और जो लोवेस्ट यूनिट गिवन है वो क्या है, लीटर. तो आपको किलोलीटर और लीटर की फॉर्मूला पता है, ग्रेटर होता है किलोलीटर. सो 1 किलोलीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर, 1 किलोलीटर इज इक्वल्स टू 1000 लीटर. क्योंकि किलोलीटर और लीटर के बीच में 3 प्लेसेस का गैप होता है तो फॉर्मूला होता है 1 किलोलीटर इज इक्वल्स टू 1000 लीटर. हमें इस नंबर को किलोलीटर के अंदर कन्वर्ट करना है. तो किलोलीटर के अंदर कन्वर्ट करने का सबसे सिंपलेस्ट वे यहाँ पर ये है स्टूडेंट्स के जो भी नंबर गिवन है, पहले आप नंबर लिखिए 17 एंड देन इट इज गिवन 342. मैंने यहाँ पर यूनिट्स हटाकर सिंपली नंबर प्लेस कर दिया है. नंबर प्लेस करने के बाद में अब हम इसको कैसे किलोलीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे वो आप देखिए स्टूडेंट्स कि आपको पता है 3 जीरोस होते हैं किलोलीटर और लीटर के फॉर्मूला के अंदर. सो लीटर इज इक्वल्स टू 1000. सो 3 जीरोस दैट मीन्स जो डेसिमल की प्लेसमेंट होगी वो लास्ट से 3 डिजिट्स के पहले आप पुट कर दो कि जो डेसिमल होगा वो 17 के बाद में आ जाएगा. तो 17.342 सिंपली डेसिमल प्लेस करके ये जो कन्वर्ट हो जाएगा वो हो जाएगा किलो लीटर के अंदर. सो दिस इज द वे टू कन्वर्ट इट इनटू किलोलीटर. ओके, और एक और सिंपल वे है, आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पर आप आंसर देखिए और 17 किलोलीटर लिखा है तो पहले आप 17 लगा दीजिए जो हाईएस्ट यूनिट होती है, उसके बाद में आप लगा दीजिए डेसिमल. किलोलीटर के बाद में आप डेसिमल लगा दीजिए और बाद में जो 3 नंबर्स हैं, 3 डिजिट्स हैं वो आप एज इट इज मेंशन कर देंगे. तो 17.342 किलोलीटर. ओके, इधर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप करिए, 3 डिजिट्स के पहले आप डेसिमल लगा दीजिए, या फिर आप ये ध्यान रखिए कि जो बिगर यूनिट होती है, बिगर यूनिट के बाद में लग जाता है हमारा डेसिमल और बाकी के जो नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, वो एज इट इज हम मेंशन कर देते हैं. तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 17.342 किलोलीटर. ओके, so this is how we have to do question number 1. Let us now move on to question number 2, and it is find the difference between the given measures. Now some measurements are given and we have to find the difference between them. So it is the measurement of kilometer and meter. किलोमीटर और मीटर का मेजरमेंट गिवन है तो हम कॉलम बना लेंगे और एक तरफ टॉप में लिख देंगे किलोमीटर और दूसरी तरफ लिख देंगे मीटर. किलोमीटर के अंदर नंबर गिवन है 1414 एंड अदर साइड इट इज गिवन 12. सो 14 के नीचे आप प्लेस कर देंगे 12. मीटर के अंदर जो नंबर्स गिवन है वो है 725. तो यहाँ पे मीटर के नीचे आप मेंशन कर देंगे 725 और 725 के नीचे आप मेंशन कर देंगे 850. Now simply do subtraction. So 5 minus 0 is 5. 2 minus 5 is not possible. So 2 will take borrow from 7. 7 will become 6 and 2 will become 12. 12 minus 5 is equals to 7. Now 6 minus 8 is not possible. So this 6 will take borrow from 4. So 4 will become 3 and 6 will become 16. 16 minus 8 is equals to 8. 3 minus 2 is equals to 1 and 1 minus 1 is equals to 0. So no need to mention 0 here. Now अब हमारा आंसर क्या हो गया, किलोमीटर वाले कॉलम में रहा है 1 तो 1 के साथ में आप लगा देंगे किलोमीटर एंड मीटर वाले कॉलम में है 875. सो मीटर के साथ में आ जाएगा 875. सो सिंपली दिस इज द आंसर. सेम वे वी हैव टू डू द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 also. Here also see at the top you will mention the units which are given in the question. So it is kilogram, hectogram, decagram and gram. So first of all I have mentioned all the 4 units and then under the units I have mentioned the numbers which are given in the question. So kg के अंदर given है 8 and 2. So 8 और 2 को हमने mention कर दिया. Hectogram में given है 7 and 8. So 7 and 8 also we have mentioned. Decagram में given है 2 and 5. So here I have mentioned 2 and 5 under decagram. And gram में given है 6 and 6. So here I have mentioned 6 and 6. Then simply do subtraction. After subtraction, you will get the answer as 5 kg, 8 hg, 7 dag and 0 g. So as I told you, अगर किसी यूनिट के साथ में 0 आता है तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं. तो ये 0 g को आप रिमूव कर सकते हैं और आपका आंसर हो जाएगा 5 kg, 8 hg and 7 dag. Both are correct. In any way you can write your answer. Now let us move on to part C, and part C is 9 kiloliter, 2 hectoliter, 8 decaliter, 7 liter and 2 kiloliter,
7 hectoliter, 6 decaliter and 8 liter. Again, you will mention the units firstly at the top, whatever are the units given in the question, and then under the units you have to mention the numbers which are given in the question. So here is 9 and here is 2. So 9 and 2 will come in the column like this under kiloliter. Then with hectoliter is the number 2 and number 7. So 2 and 7 will come under hectoliter. In decaliter, 8 and 6 is there. So under decaliter, you have to mention 8 and 6. And then in liter, number 7 and number 8 is there. So mention it like this. Then simply you have to do subtraction, and you already know how to do subtraction. So just subtract it yourself and find the answer. And remember, after subtraction, you have to mention the units. Like in kiloliter column, you have to mention kiloliter. In hectoliter, you have to mention hectoliter. Decaliter, you will mention decaliter. And finally, in liter, you will mention liter along with the digits of answer. Okay, students. So that is how you have to do addition and subtraction of metric measures. Now, let us move on to question number 3rd, and it is multiply the following. अब इसमें हमें करना है multiplication. Multiplication करने के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले जो गिवन नंबर है उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे. तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, एक्सप्रेस करने के लिए हम पहले करेंगे जो नंबर गिवन है उसको मेंशन. लाइक आप 25 को यहाँ पर करेंगे सबसे पहले मेंशन. क्वेश्चन के अंदर गिवन है 25, तो पहले आप 25 को मेंशन करिए. अब देखिए 25 के साथ में जो यूनिट गिवन है वो क्या गिवन है स्टूडेंट्स? मीटर. और 15 के साथ में गिवन है सेंटीमीटर. तो मीटर और सेंटीमीटर से ग्रेटर क्या है? मीटर. तो मीटर के बाद में हम लगा देंगे हमारा डेसिमल. जो भी ग्रेटर है उसके बाद में आप लगाएंगे डेसिमल. और सेंटीमीटर में क्या गिवन है? 15. सो ये आ जाएगा 25.15 जब आप इसको मेंशन करेंगे डेसिमल में. और डेसिमल में मेंशन करने के बाद ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बिगर यूनिट ही आप प्लेस करोगे. तो मीटर और सेंटीमीटर में से बिगर यूनिट है मीटर, तो इसके बाद में आ जाएगा मीटर. एक बार जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तब आपको क्या करना है? सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है गिवन नंबर से. यहाँ पे गिवन नंबर क्या है? 8. तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो डेसिमल वाला नंबर है उसको 8 से. सो सी 25.15 मल्टीप्लाई बाय 8. अब सिंपली मल्टीप्लाई करिए. 8 5s are 40, 8 1s are 8 plus 4 12, 1 carry over 2 down, 8 5s are 40 plus 1 41, 8 2s are 16 plus 4 is equals to 20. Okay, 20. So 201.20. डेसिमल के बाद में 2 नंबर्स थे, पहले भी 2 डिजिट्स थी और यहाँ पर भी डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स आएंगी. डेसिमल का आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स. ओके, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 201.20 मीटर. या तो आप अपना आंसर इस फॉर्म में लिखिए 201.20 मीटर के फॉर्म में लिखिए, या फिर आप अपना आंसर लिख सकते हैं डेसिमल के पहले आप मेंशन कर देंगे मीटर और डेसिमल के बाद में आप मेंशन कर देंगे सेंटीमीटर. तो डेसिमल के पहले आ जाएगा 201 मीटर और डेसिमल के बाद में आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन में यूनिट्स गिवन थी. ओके, पे अटेंशन ऑन बी पार्ट नाउ. बी पार्ट पे आप ध्यान देंगे. इसमें भी आपको क्या करना है? किलोग्राम और ग्राम के अंदर गिवन है पहले, तो हम क्या करेंगे? किलोग्राम और ग्राम को पहले हम डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे. तो किलोग्राम और ग्राम में से ग्रेटर है किलोग्राम, तो पहले आप लिखेंगे 52. 52 के बाद में आप प्लेस कर देंगे आपका डेसिमल. ओके, सो 52 के बाद में हमने प्लेस किया डेसिमल, एंड जो 3 डिजिट्स गिवन है वो एज इट इज आ जाएगी 275. अब किलोग्राम और ग्राम में से ग्रेटर क्या है? यस, किलोग्राम और ग्राम में से ग्रेटर है किलोग्राम. तो यहाँ पर जो डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद में यूनिट आएगी वो आएगी ग्रेटर यूनिट, दैट इज किलोग्राम. ओके, नाउ डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद में अब हम करेंगे सिंपली इसको मल्टीप्लाई. सो 52.275 को आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर 10 से. आपको पता है स्टूडेंट्स कि अगर आप इसको डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई करते तो आपका रिजल्ट आ सकता था बिना मल्टीप्लिकेशन करे हुए. हम जैसा कि कर चुके हैं कि हम किसी भी नंबर को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली क्या होता है? उसमें एक जीरो ऐड हो जाता है. लाइक अभी अगर मैं डेसिमल रिमूव कर दूं तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 52.275 अगर डेसिमल रिमूव कर दिया जाए. इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 10 से तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? मेरा आंसर आ जाएगा 522750. ओके, सिंपली नंबर के बाद में क्या हो गया? एक जीरो ऐड हो गया यहाँ पर. फाइन. एंड इफ वी डू इट बाय प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन, अगर हम प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन से करते हैं तो क्या होगा? 52.275 को आप 10 से मल्टीप्लाई करिए.
डेसिमल की प्लेसमेंट स्टूडेंट्स जहां है वो वहीं चलेगी, डेसिमल की प्लेसमेंट आप चेंज नहीं करेंगे। लाइक जीरो से जब हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले जीरोस आ जाएगा। अब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए डबल मल्टीप्लिकेशन है तो जीरो के नीचे आप पहले मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब 1 को 5 से करिए 5, 1 को 7 से करिए 7, देन अब 7 के पहले लगेगा हमारा डेसिमल, देन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2, तो ये जो 2 है ये डेसिमल के पहले आएगा, दैट मीन्स वंस प्लेस के ऊपर आएगा। फिर 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2, एंड 1 को फाइनली 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5, देन सिंपली एड इट तो आ जाएगा 522 पॉइंट। डेसिमल की प्लेसमेंट सेम रहेगी, जिस जगह डेसिमल स्टार्टिंग से रहेगा वहीं पर डेसिमल रहेगा, डेसिमल की प्लेसमेंट चेंज नहीं होती है। और डेसिमल के बाद आ जाएगा 750। आप यहाँ पर भी देख सकते हो जैसा कि मैंने बताया था, अगर आप डायरेक्ट भी करोगे तो 522750 आएगा, और प्रॉपर सॉल्व करके भी करेंगे तो 522750 आएगा। डेसिमल 3 डिजिट्स के पहले था तो यहाँ पर भी 3 डिजिट्स के पहले हमारा डेसिमल प्लेस हो जाएगा। ओके, सो ये तो हो गया बिगर यूनिट के अंदर आंसर, हमने लास्ट में किलोग्राम प्लेस कर दिया। बट अगर हमें इसको डबल यूनिट्स में शो करना है जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था किलोग्राम और ग्राम में, तो सिंपली डेसिमल के पहले जो नंबर्स गिवन है 522 उसके साथ में लग जाएगा किलोग्राम, और डेसिमल के बाद में जो नंबर गिवन है उसके साथ में लग जाएगा नंबर ग्राम। ओके, सेम वे वी हैव टू डू सी पार्ट। सी पार्ट के अंदर भी आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो पहले आप क्या करेंगे, डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे भी देखिए डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे बिगर यूनिट है उसका नंबर हम पहले प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे बिगर यूनिट क्या है स्टूडेंट्स, किलोमीटर। किलोमीटर के अंदर क्या गिवन है नंबर, किलोमीटर का नंबर गिवन है 6, तो सबसे पहले आप प्लेस करेंगे 6, 6 के बाद में आप लगा देंगे डेसिमल। अब जो 3 नंबर्स गिवन है वो सारे जो यूनिट्स हैं वो किलोमीटर से छोटी हैं, तो वो हम एज इट इज प्लेस कर देंगे, दैट इज 3, 2, 4। तो ये कन्वर्ट होकर हो जाएगा डेसिमल में 6.324, और लास्ट में लगेगी बिगर यूनिट। सो बिगर यूनिट सब में से क्या है, किलोमीटर, सो लास्ट में आ जाएगा हमारे पास में किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो लाइक दिस यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल, और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद में हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जो गिवन नंबर है क्वेश्चन में दैट इज नंबर 12, तो हम यहाँ पर इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 12 से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 के पहले आप लगाएंगे डेसिमल, क्योंकि 3 के पहले भी डेसिमल है, तो यहाँ पर जब हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा आया 6, तो 6 के पहले भी आ जाएगा डेसिमल। नाउ 2 6 जा 12, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डबल मल्टीप्लिकेशन है तो 8 के नीचे पहले आप लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2। अब 2 के पहले लगेगा डेसिमल क्योंकि उसके ऊपर भी हमने डेसिमल की प्लेसमेंट कर रखी है, तो डेसिमल के जस्ट नीचे हम डेसिमल पुट करेंगे। अब 1 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा डेसिमल के पहले, एंड देन 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 1 के जस्ट नीचे 6। नाउ सिंपली एड इट टू गेट द आंसर, आंसर आ जाएगा आपका 75.888, और ग्रेटर यूनिट क्या है, किलोमीटर, तो लास्ट में भी क्या आ जाएगा, किलोमीटर। और अगर हम इसको क्वेश्चन के गिवन यूनिट्स के अंदर डिफाइन करेंगे आंसर्स को, तो कैसे आप लिखोगे, डेसिमल के पहले जो नंबर है 75 उसके साथ में लगेगी बिगर यूनिट, तो सबसे बिगर यूनिट क्या है इन सब में, किलोमीटर, तो 75 के साथ में आप लगाएंगे किलोमीटर। देन डेसिमल के बाद में जो फर्स्ट डिजिट है उसके साथ में लगेगा हेक्टोमीटर, सेकेंड जो प्लेस है उसके साथ में लगेगा डेकामीटर, और जो लास्ट प्लेस है उसके साथ में लगेगा मीटर। ओके, सो दिस इज हाउ टू मेंशन इट विथ यूनिट। अगर डेसिमल में मेंशन करेंगे तो बिगर यूनिट की सिर्फ शो होगी, और अगर आप डेसिमल में शो ना करके यूनिट्स के साथ में शो करेंगे तो कैसे शो करेंगे, डेसिमल के पहले आएगी बिगर यूनिट, और फिर उसके बाद में डेसिमल के बाद में हम जैसे जैसे लेते रहेंगे तो बिगर यूनिट के बाद में जितनी भी प्लेसेस आती हैं उस तरीके से उसकी प्लेसमेंट होती चली जाएगी। लाइक किलोमीटर के बाद में आती है हेक्टोमीटर, तो डेसिमल के बाद में जो फर्स्ट प्लेस होगी वो हेक्टोमीटर, देन डेकामीटर, एंड देन फाइनली मीटर। ओके, so this is how you have to do the multiplication of metric measures. Now let us move on to question number 4th, and it is find the quotient of the following. Here we have to find the quotient. Quotient means here we have to do the division. Fine, डिवीजन करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो इसमें भी आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स कि जो भी नंबर गिवन है उसको आपको पहले
डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो बिगर यूनिट है वो आप मेंशन करेंगे। तो बिगर यूनिट है यहाँ पर, बिगर यूनिट के साथ में नंबर है 9, 9 मेंशन करके आप लगा देंगे डेसिमल। फर्स्ट जो बिगर यूनिट है उसके जस्ट बाद में ही आप लगाएंगे आपका डेसिमल। डेसिमल लगाने के बाद में बाकी की जो डिजिट्स हैं वो आप एज इट इज मेंशन कर दीजिए, दैट इज 5 7 6। ओके, और लास्ट में हमारी आ जाएगी बिगर यूनिट। तो इन सब में से बिगर यूनिट है किलोमीटर, सो लास्ट में आ जाएगा डेसिमल के बाद में किलोमीटर। इसको हमें डिवाइड करना है नंबर 12 से। सो सी हाउ वी विल डू द डिवीजन। आप डिवीजन फॉर्मेट के अंदर जो डेसिमल नंबर है उसको प्लेस कर दीजिए 9.576, और नॉर्मल जैसे आप डिवीजन करते हैं वैसे डिवीजन करिए। सो 12 के टेबल में फर्स्ट आप क्या करेंगे, 95 से स्मॉलर नंबर देखेंगे। डेसिमल को मत देखिए, यहाँ पर डेसिमल प्लेस करना है बट डेसिमल के साथ में हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। 95 से जो स्मॉलर नंबर होता है 12 की टेबल में वो होता है 7 टाइम्स 84। तो टॉप में आप लिखेंगे 7 और 95 के नीचे आप मेंशन कर देंगे 84। नाउ नेक्स्ट स्टेप में इसको सब्ट्रैक्ट करिए, 5 minus 4 is 1 and 9 minus 8 is also 1. Now you have to bring this 7 down. अब 117 से छोटा नंबर 12 की टेबल में आता है 9 times 108. So 117 के नीचे आप प्लेस कर देंगे 108 को, सब्ट्रैक्ट करिए। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में आपके पास में आ जाएगा 117 minus 108 is equals to 9. Now you have to take this 6 down. So the number will become 96. Now in the table of 12 8 time comes number 96. So 96 के नीचे आप 96 को प्लेस कर देंगे, then subtract it. So 96 minus 96 is equals to 0. Now ये जो 798 क्वेश्चन के अंदर आया है, इस 798 को हम अलग से आंसर में शो कर देंगे। अब हमें करना है डेसिमल की प्लेसमेंट। सो क्वेश्चन में जो डेसिमल की प्लेसमेंट थी वो लास्ट से आप देखिए 3 डिजिट्स के पहले डेसिमल की प्लेसमेंट थी। तो हमारा भी जो डेसिमल होगा वो हम पीछे से काउंट करके 3 डिजिट्स के पहले प्लेस कर देंगे। सो पीछे से काउंट करिए 8 9 7, ये 3 डिजिट्स हो गई। तो हमारी जो डेसिमल है वो 7 से पहले आ जाएगा एंड देन यू विल कवर दिस डेसिमल बाय 0. सो योर आंसर विल बी 0.798 किलोमीटर। और अगर हमें इसको किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर और मीटर सारी यूनिट्स के साथ में शो करना है तो हम कैसे शो करेंगे, डेसिमल के पहले आएगा किलोमीटर बट यहाँ पे डेसिमल के पहले है नंबर 0। सो 0 को हम मेंशन नहीं करेंगे, हम डेसिमल के बाद में जो फर्स्ट डिजिट है उससे स्टार्ट करेंगे। सो डेसिमल के बाद में जो फर्स्ट डिजिट है वो है 7, 7 के साथ में आएगी हमारी यूनिट हेक्टोमीटर। देन 7 के बाद में जो नेक्स्ट डिजिट है दैट इज 9। सो 9 आप मेंशन करेंगे और 9 के साथ में जो यूनिट लगेगी वो होगी डेकामीटर, दैट इज DAM। देन लास्ट जो यूनिट है वो है 8। सो आप मेंशन करेंगे 8 एंड देन उसके साथ में आप मेंशन कर देंगे लास्ट यूनिट दैट इज मीटर। सो हियर वी हैव टू डू वन करेक्शन, हियर इट विल बी नंबर 8। ओके, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 6 नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा नंबर 8। सो हियर वी विल बी मेंशनिंग नंबर 8। फाइन, और 8 के साथ में जो यूनिट लगेगी वो यूनिट क्या लगेगी, मीटर, बिकॉज आवर आंसर वाज 798. So 7 hectometer, 9 decameter and 8 meter will be the answer. Okay, now let us move on to part B. Part B के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो बिगर यूनिट है सब में से ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, सो इन सब में से जो ग्रेटर यूनिट है वो है ग्राम। सो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे 9, 9 के बाद में हम लगाएंगे डेसिमल एंड देन बाकी की जो 3 डिजिट्स हैं वो एज इट इज मेंशन कर देंगे, दैट इज 651 आ जाएगा एज इट इज। और ग्रेटर यूनिट क्या है यहाँ पर, ग्राम है, सो लास्ट में लग जाएगा ग्राम। अब आप डिवाइड करेंगे सिंपली, सो डिवाइड करने के लिए आ जाएगा 9.651। ओके, डिवीजन फॉर्मेट के अंदर, और इसको डिवाइड किससे करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो डिवीजन फॉर्मेट के बाहर आ जाएगा 7। 1 बाय 1 हम डिवीजन करेंगे जैसे हम नॉर्मली डिवीजन करते हैं। तो देखिए 7 की टेबल में 9 से छोटा आता है 7। सो हियर 7 1 is 7, सब्ट्रैक्ट करिए 9 minus 7 is 2, ब्रिंग दिस 6 डाउन, 6 को नीचे लेकर आएंगे तो हो गया 26। 26 से छोटा नंबर 7 की टेबल में इज 3 टाइम्स, तो टॉप में आ जाएगा 3, 7 3 is 21। 26 minus 21 is equals to 5, then bring this 5 down। अब ये जो 5 है ये नीचे आ जाएगा। Now 55 से स्मॉलर नंबर इन द टेबल ऑफ 7, इट इज 49 एंड इट कम्स 7 टाइम्स, सो टॉप में आ जाएगा 7 और 55 के नीचे आप मेंशन कर देंगे नंबर 49। Now 55 minus 49 will give you 6. Now
ब्रिंग दिस 1 डाउन, अब इस 1 को हम नीचे लेकर आएंगे। सो 61 से स्मॉलर नंबर हमको देखना है। सो 61 से स्मॉलर नंबर 7 की टेबल में आता है 56 एंड इट कम्स 8 टाइम्स। सो 7 8 इज 56। 61 में से 56 को सब्ट्रैक्ट करिए, आ जाएगा आपके पास में नंबर 5। ओके, सो ये है आपके पास में रिमाइंडर। यहाँ पर ये 5 जो है वो रिमाइंडर बच गया, बट रिमाइंडर को हमें यहाँ पर कहीं पे भी शो नहीं करना है, हमें सिर्फ क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन, तो हम क्वेश्चन के ऊपर ही फोकस करेंगे। क्वेश्चन में क्या है हमारे पास में 1378। अब इसमें हमें करना है डेसिमल प्लेस। अब डेसिमल 3 डिजिट्स के पहले था, तो हमारा भी जो डेसिमल होगा वो कहाँ आ जाएगा, 3 डिजिट्स के पहले। दैट मीन्स 3 के पहले आ जाएगी हमारी डेसिमल की प्लेसमेंट, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.378 ग्राम। अगर आप डेसिमल में लिखते हैं तो आंसर हो जाएगा 1.378 ग्राम, और यूनिट्स के अंदर आप लिखते हैं तो डेसिमल से पहले जो नंबर है उसके साथ में लग जाएगा ग्राम। सो सबसे पहले लग जाएगा ग्राम, और ग्राम के बाद में क्या आता है मैट्रिक मेजर टेबल में अकॉर्डिंग टू मास, इट इज ग्राम, देन डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। सो डेसिमल के बाद में जो फर्स्ट डिजिट है उसके साथ में आ जाएगा डेसीग्राम, 3 डेसीग्राम, सेकंड डिजिट है 7 उसके साथ में आ जाएगा सेंटीग्राम, थर्ड डिजिट है 8 उसके साथ में आ जाएगा मिलीग्राम। Okay students, so this is how you can write your answer in both the way. If you are writing in this way then also it is correct, and if you are writing in this way then also it is correct. Both the answers are counted as correct only. Now let us move on to part C, and in part C it is 4 meter, 8 decimeter, 8 centimeter, 4 millimeter by 8. इसको भी हम पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप सबसे पहले बिगर यूनिट लिखेंगे। बिगर यूनिट क्या है, मीटर, उसके साथ में नंबर क्या है 4, तो आप लिखेंगे 4, देन लगा देंगे आप डेसिमल, और उसके बाद में जो बाकी की यूनिट्स हैं, नंबर्स हैं, वो एज इट इज मेंशन कर देंगे, दैट इज 884, सो 4.884, और लास्ट में लगेगी बिगर यूनिट। सो बिगर यूनिट है इन सब में से मीटर, सो 4.884 मीटर। ऐसे हम करेंगे इसको डेसिमल में कन्वर्ट। अब आप सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे नंबर 8 से। सो देखिए पहले हम फर्स्ट 2 नंबर्स लेंगे 48। सो 8 की टेबल में 48 आता है 6 टाइम्स, तो क्वेश्चन ऊपर टॉप में आ जाएगा 6, और 48 के नीचे आप मेंशन कर देंगे 48। नाउ 48 माइनस 48 इज 0। नाउ ब्रिंग दिस 8 डाउन। 8 की टेबल में 8 आता है 1 टाइम, सो आप टॉप में लिखेंगे 1, और 8 के नीचे आ जाएगा 8। नाउ 8 माइनस 8 इज अगेन 0। नाउ ब्रिंग दिस 4 डाउन। अब आप इस 4 को नीचे लेकर आएंगे। नाउ अब आपको पता है स्टूडेंट्स के 8 की टेबल में 4 नहीं आता है। सो अगर 8 की टेबल में 4 नहीं आता है दैट मीन्स 4 से छोटा नंबर क्या आएगा, 0। यहाँ पे ये रिमाइंडर नहीं काउंट हो सकता, ये नंबर अभी हमने टॉप से नीचे प्लेस करा है, तो जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता, रिमाइंडर नहीं आ जाता, हमारा क्वेश्चन फाइंड आउट नहीं होगा। सो 4 से स्मॉलर नंबर हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा 8 की टेबल में। सो 4 से स्मॉलर नंबर आता है 0, 8 zeros are 0। नाउ 4 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4। अब ये जो 4 है ये बन गया हमारा रिमाइंडर, बट रिमाइंडर को हम बिल्कुल सॉल्व नहीं करेंगे आगे, डेसिमल लगा के हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, रिमाइंडर को हम एज इट इज रहने देंगे। हम सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप ये 610 जो होगा यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें बस अब आप डेसिमल प्लेस करेंगे। हमारा जो डेसिमल था वो 3 डिजिट्स के पहले था, तो यहाँ पर भी हम पीछे से काउंट करके 3 डिजिट्स के पहले लगा देंगे अपना डेसिमल, और यहाँ पे डेसिमल के आगे कोई डिजिट्स नहीं है, तो हम डेसिमल को कवर कर देंगे 0 से, और लास्ट में लगा देंगे हमारी बिगर यूनिट दैट इज मीटर। सो अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो भी सही है, या फिर आप इसको अगर यूनिट्स के साथ में मेंशन करते हैं तो आप कैसे मेंशन करेंगे, डेसिमल के पहले आएगी बिगर यूनिट, सो बिगर यूनिट है मीटर, बट यहाँ पर डेसिमल के पहले जो नंबर है वो 0 है, तो 0 हमें मेंशन करने की नीड नहीं होती, तो हम डेसिमल के बाद से स्टार्ट करेंगे। सो डेसिमल के बाद में जो फर्स्ट नंबर है उसके साथ में यूनिट आएगी डेसीमीटर, देन सेंटीमीटर एंड देन मिलीमीटर। सो 6 के साथ में आएगा डेसीमीटर, 1 के साथ में आएगा सेंटीमीटर, और 0 के साथ में आएगा मिलीमीटर। सिंस 0 हमें मेंशन करने की नीड नहीं होती तो हम इस 0 मिलीमीटर को रिमूव भी कर सकते हैं। आप इसका आंसर 6 डेसीमीटर और 1 सेंटीमीटर भी मेंशन कर सकते हैं, 0 मिलीमीटर मेंशन करने की नीड नहीं है। तो आप तीनों में से किसी भी तरीके से आंसर लिखें, आपका आंसर करेक्ट ही काउंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, now last part of division, it is 56 kg 349 gram by 9। यहाँ पे हमें 56 kg 349 ग्राम को 9 से डिवाइड करना है, तो इसको भी आप पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। सो किलोग्राम और ग्राम में से ग्रेटर यूनिट है किलोग्राम, तो हम इसको डेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो पहले हम लिखेंगे 56,
56 के बाद में हम पुट करेंगे हमारा डेसिमल, और डेसिमल के बाद में जो डिजिट्स हैं वो हम एज इट इज मेंशन कर देंगे 349, और दोनों में से ग्रेटर यूनिट है किलोग्राम, सो लास्ट में आ जाएगा किलोग्राम. नाउ सिंपली यू हैव टू डिवाइड इट. सो 56.349 डिवाइडेड बाय 9. 56 से स्मॉलर नंबर 9 की टेबल में आता है 6 टाइम्स 54. सो आप टॉप में लिखेंगे 6 और 56 के नीचे आ जाएगा 54. सब्ट्रैक्ट करिए, आ जाएगा 2. अब ये जो 3 है इसको आप नीचे मेंशन करेंगे 2 के पास में. 23 से स्मॉलर नंबर देखना है 9 की टेबल में, सो 9 2s टॉप में आ जाएगा 2 और 23 के नीचे आ जाएगा 18. नाउ 23 माइनस 18 विल गिव यू 5. अब 5 के पास में हम नोट डाउन कर देंगे नंबर 4 को. सो 54, 9 की टेबल में 54 आता है 6 टाइम्स, 9 6 54. 54 माइनस 54 इज 0. अब जो लास्ट डिजिट है दैट इज नंबर 9, वो हम नीचे प्लेस कर देंगे 9, और 9 की टेबल में 9 आता है 1 टाइम, सो 9 1 जा 9. 9 माइनस 9 इज 0. सो हमारा आंसर क्या आ गया? 6291. इसमें हम करेंगे डेसिमल की प्लेसमेंट. डेसिमल 3 डिजिट्स के पहले था, तो यहाँ पर भी पीछे से काउंट करके 3 डिजिट्स के पहले आ जाएगा हमारा डेसिमल, तो हो जाएगा 6.291 kg. ओके, ग्रेटर यूनिट ही प्लेस करेंगे तो ग्रेटर यूनिट है केजी. और अगर केजी और ग्राम, क्वेश्चन जो था वो केजी और ग्राम के अंदर गिवन था, तो केजी और ग्राम दोनों अगर हमें मेंशन करना है तो हम कैसे हमारा आंसर मेंशन करेंगे? डेसिमल के पहले जो नंबर है उसके साथ में आ जाएगा केजी, और डेसिमल के बाद में जो नंबर्स हैं उसके साथ में आ जाएगा ग्राम. सो 6 के साथ में आ जाएगा केजी और 291 के साथ में आ जाएगा ग्राम. सो बोथ आर द correct answer. So here I have explained you question number 1 to question number 4, that is addition, subtraction, multiplication and division. Now we are moving on to word problems. See, first word problem is Jeetu bought 8 kg 300 gram of sugar. जीतू ने इतनी क्वांटिटी शुगर की परचेज करी, देन इतनी क्वांटिटी उसने परचेज करी राइस की, एंड देन इतनी क्वांटिटी उसने परचेज करी मूंग दाल की. अब हमें बताना है कि उसने टोटल कितना मास परचेज करा है. ओके, दिस इज रिलेटेड टू किलोग्राम एंड ग्राम, और किलोग्राम और ग्राम, ग्राम आपको पता है किसकी मेन यूनिट होती है? ग्राम इज द मेन यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास, वेट. ओके, सो हमें बताना है कि उसने टोटल कितना वेट परचेज किया है. सो सी, क्वांटिटी ऑफ शुगर बॉट, शुगर उसने कितनी परचेज करी? 8 kg 300 ग्राम. क्वांटिटी ऑफ राइस बॉट, राइस उसने कितनी परचेज करी थी? 4 kg 200 ग्राम. सो ये हम मेंशन कर देंगे 8 kg 300 ग्राम के नीचे. देन क्वांटिटी ऑफ मूंग दाल बॉट, और मूंग दाल उसने कितनी परचेज करी थी? 1 kg 759 ग्राम. नाउ यू हैव टू सिंपली ऐड इट. आप इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा 14 kg 259 ग्राम. So this is only the total mass. तो उसने total quantity of sugar, rice and मूंग दाल purchase करी. So total quantity of all the 3 items he bought were 14 kg 259 gram is the answer. Okay students, so simply arrange it in column and then find the addition. Now pay attention on B part carefully. It is the perimeter of a park is 1 kilometer 800 meter. एक पार्क है, उसका पेरीमीटर गिवन है. पेरीमीटर मींस डिस्टेंस अराउंड द पार्क, पार्क के बाहर का जो डिस्टेंस है वो गिवन है. टोटल डिस्टेंस गिवन था 1 किलोमीटर 800 मीटर. दीप्ति रैन 2 राउंड्स ऑफ द पार्क इन द मॉर्निंग. दीप्ति ने उस पार्क के राउंड्स लगाए मॉर्निंग में 2 राउंड्स, एंड इवनिंग में उसने लगाए 3 राउंड्स. ओके, व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन मीटर? हमें बताना है कि उसने मीटर में कितना डिस्टेंस कवर कर दिया उस पार्क के आसपास. So see how to solve this question. First of all you will write the perimeter of park is 1 kilometer 800 meter. सबसे पहले आप जो पार्क का पेरीमीटर गिवन है वो मेंशन कर देंगे. देन आप स्टेटमेंट मेंशन करेंगे दीप्ति ran 2 rounds of the park in the morning. मॉर्निंग में जो दीप्ति थी वो पार्क के आसपास 2 बार राउंड लगा चुकी है. ओके, सो 2 राउंड्स लगाए हैं, तो हम क्या करेंगे, जो टोटल पेरीमीटर गिवन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पता चलेगा कि मॉर्निंग में दीप्ति ने कितना डिस्टेंस कवर किया है. सो सी, डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन द मॉर्निंग. सो 1 किलोमीटर 800 मीटर को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. सो 2 zeros are 0, 2 zeros are 0 and 2 8s are 16. So 1 carry over here, 1 will be carry over and then 6 will come under 8. Okay, then 2 1s are 2 plus 1 is equals to 3. That means 3 kilometer 600 meter का जो डिस्टेंस था वो दीप्ति ने मॉर्निंग में कवर कर लिया. देन शी ran 3 rounds of the park in the evening, और इवनिंग में उसने कितने चक्कर लगाए थे?
3 राउंड्स लगाए थे। तो अब इवनिंग में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन द इवनिंग, तो जो भी पार्क का पेरीमीटर था उसको अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मॉर्निंग का कैलकुलेट करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई करा था और इवनिंग का कैलकुलेट करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो सी 3 zeros are 0, 3 zeros are 0, 3 8s are 24, तो यहाँ पर कैरी ओवर होगा 2 और यहाँ आ जाएगा 4, देन 3 1s are 3 plus 2 is equals to 5. सो 5 किलोमीटर 400 मीटर। सो इतना जो डिस्टेंस था वो उसने कवर किया था मॉर्निंग में और ये जो डिस्टेंस था वो उसने कवर किया था इवनिंग में। अब हमें बताना है कि कुल मिला के उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, मॉर्निंग का जैसा कि हमने मेंशन किया 3 किलोमीटर 600 मीटर एंड इवनिंग 5 किलोमीटर 400 मीटर। अब आप सिंपली इसको ऐड करिए। सो 0 plus 0 is 0, अगेन 0 plus 0 is 0, 6 plus 4 is equals to 10. So 0 यहाँ आ जाएगा और 1 जाएगा कैरी ओवर, that you have to keep in your mind. Now 5 plus 3 is 8 plus 1 is equals to 9. So 9 किलोमीटर 000 मीटर। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर आंसर क्या आ गया हमारा 9 किलोमीटर। क्वेश्चन में गिवन था कि हमें टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है मीटर्स के अंदर, तो यहाँ पे हम फाइनली लास्ट स्टेप में कन्वर्जन करेंगे किलोमीटर को मीटर में। आपको पता है फॉर्मूला 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। सो 9 किलोमीटर को जब आप 1000 में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या है, बिगर यूनिट को हम स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बिगर को स्मॉलर में कन्वर्ट करने के लिए हम करते हैं मल्टीप्लाई। सो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूला वाले नंबर, दैट मीन्स 1000 से। सो 9 into 1000 is equals to 9000 meter. Therefore, total distance covered by her around the park was 9000 meter. अगर मीटर में कैलकुलेट करना है, that means उसने टोटल 9000 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया था मॉर्निंग और इवनिंग में मिलाकर। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू पार्ट सी। इट इज an electric pole is 8 meter 25 centimeter tall. एक इलेक्ट्रिक पोल, दैट मीन्स बिजली का जो खंबा होता है वो कितना टॉल है, उसकी हाइट गिवन है 8 मीटर 25 सेंटीमीटर। अनदर पोल इज 9 मीटर 15 सेंटीमीटर टॉल, और जो दूसरा पोल है उसकी हाइट गिवन है। व्हाट इज द डिफरेंस, यहाँ पर हमें बताना है जो दोनों पोल्स हैं उनके बीच में कितना डिफरेंस है। सो डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन। सो इसको आप कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रिक पोल, हमने पहले फर्स्ट इलेक्ट्रिक पोल की हाइट लिखी, देन द हाइट ऑफ सेकंड इलेक्ट्रिक पोल, सेकंड इलेक्ट्रिक पोल की भी हाइट लिख दी। नाउ डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ टू इलेक्ट्रिक पोल्स, दोनों इलेक्ट्रिक पोल्स की हाइट में डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो पहले आपको देखना पड़ेगा दोनों में से ग्रेटर कौन सा है। सो मीटर में देखिए यहाँ पर है 8 और यहाँ पर है 9। सो 8 और 9 में से ग्रेटर होता है 9। सो पहले हम प्लेस करेंगे 9 मीटर 15 सेंटीमीटर और 9 मीटर 15 सेंटीमीटर के बिलो हम मेंशन कर देंगे 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, एंड देन वी विल फाइंड द सब्ट्रैक्शन ऑफ बोथ दीज मेजर्स। सो 5 minus 5 is 0, 1 minus 2 is not possible, so 9 will give borrow to 1, 1 will become 11 and 9 will become 8. So 11 minus 2 is equals to 9 and 8 minus 8 is equal to 0. Okay, so this 0 meter and 90 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर के साथ में 0 है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा ओनली 90 सेंटीमीटर। Therefore, the difference between the two poles is 90 सेंटीमीटर। That means जो दोनों पोल्स थे उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 90 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द लास्ट part of this particular exercise, it is a bottle of cough syrup. cough syrup means जो खांसी की दवाई होती है उसकी जो बोतल है उसके अंदर 125 मिलीलीटर सिरप है। फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ सिरप इन लीटर, हमें आंसर लीटर में फाइंड आउट करना है। 18 सच बोटल्स, अगर एक बोतल के अंदर गिवन है कि कितना सिरप है तो 18 बोटल्स के अंदर कितना होगा। 1 क्वांटिटी का गिवन है और हमें 18 का निकालना है, एक का गिवन है हमें मोर यानी ज्यादा का निकालना है, तो कभी भी 1 का गिवन हो हम ज्यादा का निकालते हैं तो हम उसके लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन। दिस यू हैव ऑलरेडी डन इन 4 fundamental chapter. So in this particular question we will do multiplication. So see, quantity of syrup in 1 bottle is equals to 125 milliliter. Quantity of syrup in 18 bottle, 18 bottle में निकालने के लिए आप 125 को मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से। So see, 125 को जब आप 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, so देखिए नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करके आपको आता ही है मल्टीप्लिकेशन करना, मल्टीप्लिकेशन करके आपका आंसर आ जाएगा 2250। सो 2250 के साथ में लग जाएगी यूनिट मिलीलीटर, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे क्या गिवन था, मिलीलीटर, तो मल्टीप्लाई करके भी आ जाएगा मिलीलीटर।
बट क्वेश्चन में गिवन था कि हमें आंसर लीटर में कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, और मिलीलीटर और लीटर का फॉर्मूला होता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो मिलीलीटर इज व्हाट, मिलीलीटर इज स्मॉलर यूनिट एंड लीटर इज बिगर यूनिट. सो मिलीलीटर को जब आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उस केस में आप क्या करेंगे, डिवीजन. ओके, सो 2250 को आप डिवाइड कर देंगे 1000 से. डिनोमिनेटर में 3 zeros आ रहे हैं, दैट मीन्स जो डेसिमल होगा वो 3 डिजिट्स के पहले आएगा, तो पीछे से काउंट करेंगे 0 5 2 3 डिजिट्स हो गई, इसके पहले हमारा आ गया डेसिमल. ओके, सो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया लीटर के अंदर, जो यूनिट थी वो मिलीलीटर से कन्वर्ट होके क्या हो गई, लीटर. Therefore, the total quantity of syrup in 18 bottle is 2.250 liter. Okay, students? So students, here I have given you the explanation of question number 1 to question number 5 of exercise 7D, chapter number 7, metric measures. And with this, we have completed our chapter number 7 also. Okay, now I hope all the exercises 7A to 7D must be clear to you. If you are having any difficulty in any of the questions from exercise 7A to 7D, then I request you to please watch my previous videos also. And in this particular video, if you are having any doubt, then I request you to watch the explanation of that particular question again in which you are having doubt. Or you can ask me your doubt in the live class of maths. Okay students, so here we have completed our syllabus of periodic test 2. Now I will be meeting you back in the next class where I will be giving you revision of periodic test 2. Till then, you please complete this work in your notebook and please do take good care of yourself. Thank you so much students.